تو آج ہمارے کلام کا ٹاپک ہے بارش برسنے سے پہلے بارش کی آواز۔ بارش برسنے سے پہلے بارش کی آواز، بادل گرجنے کی آواز نہیں اس نے کہا تھا۔ نبی نے کوئی بادل بھی نہیں دیکھے تھے۔ بارش سے پہلے بادل ہوتے ہیں اور بادل گرجتے ہیں، اس کے بعد بارش ہوتی ہے۔ یہ نبی کی آواز کی پہچان کی گہرائی ہے۔ تالیاں ایلیا کے لیے کہ بادل بھی نہیں دکھائی دے رہے، بادل گرج بھی نہیں رہے، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں بارش کی آواز سنتا ہوں۔ نکالیں پہلا سلاطین اور اس کا 18 باب اور اس کی 41 آیت سے ہم شروع کریں گے۔ آج کا جو میرا کلام ہے تفسیری، مگر میں نے اس کو مضمون یہ دیا ہے۔ تفسیری واز وہ ہوتا ہے جو ایک آیت سے شروع کر کے 4 5 6 آیتوں کو بار بار میڈیٹیٹ کر کے غور و خوض کر کے ان کے نقطوں پر، ان نقطوں کے اندر جو پیغامات، ریویلیشنز، میسج ہوتے ہیں، ان کی وضاحتیں ہوتی ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیری واز۔ تو آج میں تفسیری واز پیش کر رہا ہوں جس کو میں نے مضمون دیا ہے بارش برسنے سے پہلے بارش کی آواز۔ مضمون جو ہوتا ہے یہ ہر ٹاپک کا ہوتا ہے، ہر لیکچر کا مضمون ہوتا ہے۔ آگے لیکچر جو ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ جی پہلا سلاطین 18:41 میں یوں رقم ہے۔ جی پھر ایلیا نے اخیب سے کہا، اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ اچھا، یہاں نبی نے لفظ کثرت استعمال کیا ہے۔ کوئی بادل دکھائی دے رہا ہے؟ ذرا نہیں اونچی کہنا ہے۔ کوئی بادل دکھائی دے رہا ہے؟ مگر وہ کہہ رہا ہے میں کثرت کی بارش کی آواز سنتا ہوں۔ کوئی بادل گرج رہے ہیں؟ نہیں۔ مگر نبی کی نہ صرف آنکھ کام کر رہی ہے روحانی طور پر، اس کے روحانی طور پر کان بھی۔ بائبل میں کتنی بار یہ لکھا ہے، آپ دیکھیں گے، جس کے کان ہوں وہ سنیں۔ جس کے تو نبی کے کان ہیں بھائی، اور بڑے تیز ہیں نبی کے کان۔ نبی کو آوازیں آ رہی ہیں، بادل کوئی نہیں، گرجے نہیں ہیں، کوئی بادل کے آثار نہیں ہیں، نہ لال بادل ہیں، نہ کالے بادل ہیں، نہ وائٹ بادل ہیں۔ 3 قسم کے بادل آسمان پر ہوتے ہیں، 3 رنگوں کے۔ نمبر 1 وائٹ، نمبر 2 لال، نمبر 3 کالے۔ نہ کالے بادل ہے، نہ وائٹ بادل ہے، نہ لال بادل ہے۔ ارے نبی کو کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ علیشا، یہاں کون تھا پہاڑ پہ اس کے ساتھ؟ علیشا اس کے ساتھ تھا۔ وہ کہتا ہے علیشا میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں۔ اور نہ صرف وہ اپنے شاگرد کو بتا رہا ہے بلکہ بادشاہ کو بھی بتا رہا ہے، بھاگ جا بادشاہ، نکل جا، جلدی چلا جا، تو گیلا ہو جائے گا، تو بھیگ جائے گا، تیری چیریٹ بھیگ جائے گی، تیرے نوکر بھیگ جائیں گے، تو بھیگ جائے گا۔ وہ کہتا ہے نبی صاحب کی گلاں کر رہے ہو؟ دھوپ لگی ہے، سورج نکلیا ہوا ہے، تسی کہہ رہے ہو کہ بارش اینی پینی ہے کہ سب ریل پھیل ہو جائے گی بارش۔ اس سے پہلے کتنے سال بارش نہیں ہوئی؟ 3.5 سال بارش نہیں ہوئی، اور یہ 3.5 سال کے بعد نبی کو بارش کی آواز آ رہی ہے، پر دکھائی کچھ نہیں دے رہا۔
मैं भी शागिर्दों को कहता हूँ, यार हौसला रखो, हौसला रखो, मुझे कुछ फील हो रहा है। ओ सर जी कितने फील हो रहा है, सान तो कुछ फील नहीं हो रहा। और मैं क्या मैनू हो रहा फील, और नहीं जी सानू तो नहीं जी हो रहा। नहीं, वैसे सारे शागिर्द ऐसे भी नहीं, वो मेरे साथ मुत्तफिक हो जाते हैं। कुछ शागिर्द वो बेचारे कहते सर जी तुहाडा सफ़र बहुत लंबा है, असी हुण तुहाडे नाल नहीं चल सकते। मैं क्या आओ यार चलो आगे, मुझे दिखाई दे रहा है कुछ, मुझे फील हो रहा है। नबी कह रहा है भाग जाओ बारिश होने वाली है। वो कहता है सूरज निकला है, धूप निकली है, अरे धूप कड़क लगी हुई है, तुम कह रहे हो कि मुझे बारिश की आवाज आ रही है। अच्छा थोड़ा सा मैं इसके अंदर सियाक़ो सबाक़ में जाते हैं। नबी ये आया कहाँ से है? जब ये पेशन गोई कर रहा है कि बारिश होने वाली है, तो नबी गुजर के कहाँ से आया है? नंबर 1 मैं बताता हूँ, नबी इस नबूवत से पहले कहाँ था और कहाँ से आया है? इस नबूवत से पहले, इस पेशन गोई से पहले नबी कहाँ था और कहाँ से आया है? नबी 1 से 2 साल कमों का मेहमान रहा है। किन का मेहमान रहा है? अरे क्रेत के नाले पर नबी काल के जमाना में किन का मेहमान रहा? कवों का मेहमान रहा। कवे रोटी ला के दे रहे, कितनी देर? 1 से 1.5 साल तक, 2 साल तक। और कवे वक्त पर रोटी ला रहे हैं, वक्त पर गोश्त ला रहे हैं। कभी भी गोश्त के अलावा वो कुछ नहीं लाए। लोग मर रहे हैं काल की वजह से, नबी क्या खा रहा है? बोटियां खा रहा है और रोटियां खा रहा है। नबी क्रेत के नाले से होकर आया है और आकर थड़क करके ये नबूवत कर दी, थड़क करके ये पेशन गोई कर दी। बारिश से पहले बारिश की, सबने आवाज कहना है, बारिश से पहले बारिश की। कुछ ने कहा नबी पागल है, नबी पागल है, इसका दिमाग काम नहीं करता है, इसका दिमाग सही नहीं है। अरे कहां से हो सकती है बारिश? धूप निकली है। और फिर नबी सारपत की बेवा के घर से आया है। इस नबूवत से पहले वो कहां से आया? पहले कहां था? कबों का 1 से 1.5 साल, और फिर 1 से 1.5 साल बेवा के घर में था। वहां से आके, और वहां जब गया तो बेवा को कहता है रोटी, भाजी रोटी ले आओ, नबी भूखा है, नबी को भूख लगी है। कहती है मर्दे खुदा तुझे तो भूख लगी है, मैं मानती हूं मेरा एक बेटा है उसको भी तो भूख लगी है, मैं हूं मुझे भी तो भूख लगी है, और मेरे घर में 1 मुट्ठी आटा और 1 तेल की कुप्पी, और वो भी उसमें थोड़ा सा तेल। कुप्पी बड़ी है मगर तेल यहां से गुजर कर आया है नबी। ऐसे कठिन हालात, मुल्की हालात नागुज़ीर देखे हैं, वो मुल्की हालात नबी करीब, अरे जितने करीब से मुल्की हालात नबी देख सकते हैं सियासतदान भी नहीं देख सकते। तालियां बजाए नबियों के लिए। अरे नबी मुल्की हालात देख कर आया है कि लोग मर रहे हैं, फिर वो देख कर आया है कि लोग मरने की तैयारी कर रहे हैं। इसी ने कहा था, कह रहा नबी हम तुझे रोटी कहाँ से दें, मुश्किल है, 1 मुट्ठी आटा है, आटा गूंदूंगी, पकाऊंगी, ऊपर चोपड़ूंगी उसको, और मेरा बेटा खाएगा, मैं भी खाऊंगी, और मर जाएंगे। इन हालातों से गुजर कर आया है नबी। मगर नबी को आवाज़ आ रही है, नबी के कान, नबी की आंखें देख रही हैं कि अरे ये तो बहुत कुछ है, टटोल रहा है। नबी की आंखें
دیکھ رہی ہیں, نبی کے ہاتھ چٹول رہے ہیں بادل, بارش, وہ فیل کر رہے ہیں کہ میں برکت کی بارش سے گیلا ہوں, مگر گیلا نہیں تھا. ڈاکٹر یونگیچو کہتا ہے جی خدا نے مجھے سائیکل بھی دے دی اور ٹیبل بھی دے دیا, اسٹڈی ٹیبل اور کرسی. اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر یونگیچو یہ کوریا کے تھے, 18 لاکھ ان کی کلیسیا تھی. شروع میں اس نے نبوت کر دی, مجھے سائیکل خدا نے دے دی ہے منادی کے لیے, آنے جانے کے لیے. خدا مجھے ایک کرسی چاہیے, ایک ٹیبل چاہیے جس پر میں تیرا کلام تیار کر سکوں, اور ملا ہے نہیں. کلیسیا کے لوگوں نے مذاق شروع کر دیا, وہ کتنے میں تھوڑا ٹیبل, کرسی, سائیکل, انہیں کو اور عجیب جی گل کر دیتی. ڈاکٹر یونگیچو کہتا ہے میرے ٹیڈ چ, وہ کہتا ہے پیٹ میں کرسی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری آنکھ سے دیکھو تو ہو سکتی ہے, کیونکہ میری آنکھ ایمان سے بھری ہوئی ہے اور تمہاری آنکھ بے ایمانی سے بھری ہوئی ہے. ارے میری آنکھوں سے دیکھو تو بادل بھرے بھرے لگتے ہیں, مجھے تو یہ بادل کالے, لال اور وائٹ, پہلے وائٹ پھر کالے پھر لال ہو گئے. تو وہ کہتا جی مجھے آواز, تو نبی یہاں سے گزر کر آیا ہے, نبی دیکھ کر آیا کہ لوگ مرنے کی تیاری میں ہیں. اس نے کہا جا, خوش قسمت ہے, یہ غیر قوم کی تھی, یہ بیوہ اسرائیلی نہیں تھی. سارپت کا علاقہ اسرائیل کی سرحد سے باہر تھا. ارے غیر قوم کی بیوہ کو اس نے کہا تو مرے گی نہیں, جا, کیونکہ میں بارش کی آواز سنتا ہوں, بارش برسنے سے پہلے میں سنتا ہوں. جا. اور ادھر بھی بارش ہوئی, کس کی؟ آٹے کی. آٹے کی بارش ہوئی. رات کو آٹا نکالتی ہے یا دن کو نکالتی ہے, ڈھکنا اوپر واپس رکھتی ہے, پھر مٹکا بھر کے اوپر آ جاتا ہے, اور پھر جب نکالتی ہے کہتی ہیں راتی تے کڈے آسی ہے, رات کو نکالا, 1 مہینہ ہو گیا میں اس میں سے آٹا نکال رہی ہوں اور آٹا ختم نہیں ہوتا ہے. اور 1 مٹھی کے آٹے کو اس نے کیا کہا تھا, جب تک می نہ برسے نہ مٹکے سے اور نہ کپی سے. ارے وہ کہاں سے نبی کو یہ سمجھ آ رہی تھی, کہاں سے انفارمیشنز آ رہی تھی؟ یہ کون سا نیوز چینل تھا پیشن گوئیوں کا؟ یہ کون سی نبوتوں کا چینل تھا جہاں سے پیشن گوئیاں آ رہی تھی, نبوتیں آ رہی تھی کہ آٹا ختم نہیں ہوگا, تیل ختم نہیں ہوگا, اور جب تک نبی اس کے گھر میں رہا ہے. بلکہ نبی نے کہا ٹھہر جا, تو مرنے کی تیاری میں ہے تو تیرے رشتہ دار بھی پھر مرن دی تیاری چنا, جا اپنے جیٹھ کو بلا لے, اپنی نندوں کو بلا لے, لکھا ہے اپنے کنبے کو بلا لے, کنبے کو. یار یہ عجیب خدا ہے, عجیب نبوت ہے, جس نبوت سے پورے کال کے زمانے میں ایک کنبہ پالتا رہا, 1 مٹھی آٹے سے. تالیاں بجائیں جی اس نبی کے لیے اور خدا کے لیے. وہ کہتا ہے مجھے آواز آ رہی ہے, میں بارش برسنے سے پہلے بارش کی آواز سن رہا ہوں. پھر وہ ایک اور منظر بھی دیکھ کر آیا تھا, جانور مر رہے تھے, ملک کے جانور, کیونکہ بارش کتنے سال نہیں ہوئی, 3.5 سال بارش نہیں ہوئی, 3.5 سال. اور میں حوالے نہیں پڑھوا رہا, بادشاہ کے شاہی گھوڑے مر گئے, شاہی گھوڑے. ذرا پڑھ دیجئے, یہ ذرا حوالہ پڑھ دیں, 18:5 پڑھ دیں ذرا. جب شاہی جانور مر رہے ہیں تو عام لوگوں کی ککڑیاں بکریاں کیا مر نہیں گئیں ہیں؟ ارے مرغیاں مر رہی ہیں,
घर के पालतू जानवर गायें भैंसें मर रही हैं और बादशाह के जानवर भी मरने की तरफ जा रहे हैं। और बादशाह क्या कहते हैं जी? सो अखीयब ने अब्दिया से कहा, बादशाह ने अब्दिया वजीर से कहा, मुल्क में गश्त करता हुआ पानी के सब चश्मों और सब नालों पर जा। गश्त करता हुआ पानी के सब, वजीर जा रहा है पानी ढूंढने, घास ढूंढने। कौन जा रहा है? वजीर। ये मुल्की हालात थे और वो कहता जी मुझे बारिश की आवाज सुनाई दे रही है। ये हालात थे हमीद साहब के। वजीर पानी ढूंढ, अरे अब्दिया वजीर क्या ढूंढ रहा है? पानी। गंदा या साफ? साफ। साफ कह रहा है कि जैसा भी मिल जाए, रुलिया खुलिया गदला पानी भी मिल जाए, ये हालत है। और नबी को किसकी आवाज आ रही है? बारिश की आवाज आ रही है। जी पढ़ दीजिए क्या कहता है बादशाह। सो अखीयब ने अब्दिया से कहा, मुल्क में गश्त करता हुआ पानी के सब चश्मों और सब नालों पर जा। चश्मों को देख, चश्मे भी खुश्क हो गए हैं और नाले नदियां खुश्क हो गए हैं। गश्त करता हुआ जा, शायद कहीं पानी हो, हमको कहीं घास मिल जाए, शायद कहीं घास मिल जाए जिससे हम घोड़ों और खच्चरों को जीता बचा लें। घोड़ों और खच्चरों को जीता बचा लें। ये हालत थी, ये हालत है। और नबी कहता है बारिश बरसने से पहले बारिश की आवाज। जी आगे पढ़ दीजिए जल्दी से। ताकि हमारे सब चौपाए जाया ना हो। हाँ। सो उन्होंने उस पूरे मुल्क में गश्त करने के लिए उसे आपस में तकसीम कर लिया। बादशाह निकल गया। अखिया, एक सेकंड जी, हाँ पढ़े जरा। क्या? अखियब एक तरफ चला। अखियब बादशाह देखो पानी लबन चला गया है। और अब आपको पता है ये कौन सा बादशाह है? जिसने मुल्क में नबी कत्ल कर दिए थे। ये वो बादशाह है। आज ये बादशाह पानी ढूंढने निकला है। जी शर्म की बात नहीं है बादशाह के लिए, यह शर्मिंदगी की बात नहीं। एक इतना बड़ा ओहदा रखने वाला खुद पानी की तलाश में निकल गया है, वजीर पानी की तलाश में निकल गया है कि घोड़े खच्चर क्या कर लें? बचा लें। ऐसी हालत में फिर खादम जब कहता है जी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, तो शागिर्दा ने कहना जी साढ़े खोते मार रहे ने, साढ़े खच्चर मार रहे ने। भाई साहब ये की कर रहे हो? सानू किथे किथे टरा रहे हो हैं, किथे किथे चला रहे हो? मगर नबी को आवाज़ आ रही है जी। तो ये यहाँ इन हालतों से, इन मनाजर को देखकर वो गुजरता हुआ नबी आया है। और जी अब पढ़ दीजिए फिर से उसी आयत को 41 क्यों। फिर एलिया ने अखीयब से कहा कि ऊपर चढ़ जा, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज़ है। जी 18 की। फिर एलिया ने अखीयब से कहा ऊपर चढ़ जा, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। हाँ जी आगे। तो अखीयब खाने पीने को ऊपर चला गया। हाँ। और एलिया किरमल की चोटी पर चढ़ गया जी। और जमीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच में कर लिया। अब नबी ने अपना सर कहाँ रखा हुआ है? अपने घुटनों के बीच में कर लिया। किसी नबी का सर उसके घुटनों में है तो फिर यकीन करो उसका सर किस में है? दुआ में। दुआ में है, खुदा के सिजदे में है। नबी का सर जो है वो पेशेंट कोई ऐसे नहीं कर रहा, उसका जो सर है उसने अपने घुटनों में दिया हुआ है, झुकाया हुआ है। नबी झुका हुआ महसूस कर रहा है, देख रहा है कि खुदा उससे कलाम कर रहा है। घुटनों के अंदर दिए हुए सर में वो अपना कलाम डाल रहा है कि एलिया बस खत्म, अब और काल नहीं चलेगा, अब और मुसीबत नहीं चलेगी, अब और खच्चर नहीं मरेंगे, अब और पालतू जानवर इस्राएल के नहीं मरेंगे। अब सारपत की बेवा मटके को छोड़कर खेतों से फसलें काटेगी। हालेलुया तालियां। अब सारपत की बेवा नए फसलों का बीज खाएगी, उसका कुनबा। अरे मैं बारिश बरसा कर नए खेत उगाने वाला हूं, नए फल पैदा करने वाला हूं, मैं नई बरकतों को नाजिल करने वाला हूं। चूंकि नबी का सर कहां है? घुटनों के बीच में।
अरे जब नबी का सर घुटनों के बीच में हो तो नबी कुछ कहे तो फिर उसका यकीन करो ना कि जो कुछ कह रहा है वो आगे होने वाला है। जो नबी कह रहे हैं कि बारिश होने वाली है, काल खत्म होने वाला है, नई फसलें, नए बाग, नई खुराकें जमीन से उगने वाली हैं, तो फिर उसका यकीन करो। नहीं करोगे तो फिर मरो। जो कलाम पर ईमान नहीं रखता, आप जानते हैं एक वजीर ने नबी की, अलीशा नबी की नबूवत पर ईमान नहीं रखा। नबी ने भी ओखी नबूवत कर दी ना। उस वक्त जो काल पड़ा था, लोग गधे का सर कितने का खरीद के खा रहे थे? चांदी के 80 सिक्कों में। चांदी के 80 सिक्कों में गधे की सिरी लोग अपने बच्चे काट कर खा रहे थे। लोग बच्चे काट कर खा रहे थे। इतनी सख्त हालत में नबी ने यह कह दिया, कल इसी वक्त इसी फाटक पर सस्ता आटा अनाज बिकेगा। वजीर का दिमाग खराब हो गया, उन्होंने चढ़ गुस्सा गया और कहता चलिया की कह रहे हैं, तू पागल है। लोग गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में खा रहे हैं, लोग अपने बच्चे काट के खा रहे हैं। पता नहीं कितों कितों ना अपने बच्चे का गोश्त काट के, ये कैसे माँ बाप है। खुद गर्जी की इंतहा यहां तक भी हो सकती है कि अपने सुलभ के रिश्ते काट कर उन्होंने खा लिए। तो यहां नबी का सर कहां है जी? आगे पढ़ दीजिए। तो जिस नबी का सर घुटनों में है, अगर वो कोई नबूवत करे तो उसको गौर करें, तवज्जो करें। बारिश नजर नहीं आ रही, धूप लगी हुई है, नबी के बारिश होगी तो तुसी कहना होगी है। बादल नजर नहीं आ रहे, नबी कह रहा बारिश होगी तो तुसी कहना तो खुदा कहेगा यार किड्डे चंगे ने मेरे नबी की नबूवत के साथ साथ आमीन 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 कहते जा रहे हैं। वे किड्डे चंगे ने होए, बरकता वाले ने होए, पागा वाले ने होए, जो नबी की नबूवत के साथ आमीन आमीन कहते रहे। नबी की अपना कलाम थोड़ा है, नबी भी तो डिवाइन पोस्टमैन है, नबी भी तो खुदा का डाकिया होता है। अरे नबी भी चिट्ठी पहुंचाता है, खत पहुंचाता है, लेटर पहुंचाता है, हालात के और मुस्तकबिल के है। नबी बनीनो इंसान का के लिए खुदा लेटर बॉक्स बनाया हुआ है। खुदा ने नबी को, खादमों को, क्या जी इथों फर्क इन्ना में कि नबी आप ही अंदरों फड़ के लैटर बाहर कट दा, ए तेरा लैटर ही, ए तेरा ही, ते ए तेरा ही, ते ए तेरा ही। ते जेड़े जो खोलते हैं ना, एक लैटर च लिखा है मैं तुझे करोड़पति बना दूंगा, वो तो पांदा है लुड़ियां। ते जेड़े लैटर चो निकले मैं तेनू छड़ना नहीं होए, तो फिर वो जिदे ना दा लैटर वो की करेगा। तो नबी बेचारा मुफ्त च मारिया गया, नबी मुफ्त में मारा गया है। अरे नबी खुदा का लेटर बॉक्स है, पोस्टमैन है, डाकिया है, जो वो ऊपर से पैगाम लेता है, पेशन गोइयां लेता है, कलाम लेता है, इल्हाम लेता है, आगे वो लोगों को देता है और वो कहता है बारिश बरसने से पहले आवाज, बारिश की आवाज। कोई आ रही आवाज अच्छी, मिनते आ रही जी आवाज, DCCM वास्ते अच्छी आवाज आ रही है। मैं तो किन्ने देर का कह रहे हूँ अच्छी आवाज है। अच्छा जरा देर तो चले जानी है, इधर जरा देर हो गई। शागिर्द को कहता है जा
कहता कुछ भी नहीं, कहता जा, कहता कुछ भी नहीं। आगे पढ़े जरा। और अपने खादम से कहा जरा खादम से ऐ हुण जरा देर वाले पासे आ जाओ जरा, कि देर हो जाती है तो शागिर्द अगों तंग ही पै गया। वो कहता जा यार उस्ताद जी तुसी की करते हो, तुहाडा आइडिया सही नहीं है। वो कहता है, एलिया कहता है अलीशा मेरा सर घुटनों में है, मैं देख रहा हूं बादल देख रहा हूं, बारिश देख रहा हूं और तूफानी बारिश देख रहा हूं, जल थल हो जाएगी, सारी नदियां फिर से भर जाएंगी, नाले फिर से भर जाएंगे, दरिया फिर से भर जाएंगे। अरे मैं देख रहा हूं अलीशा, देख रहा हूं। कहता है उस्ताद जी मैं कुछ नहीं जे वेख रहा। कहता यार हो कह सकता है उस्ताद वेखे ते शागिर्द नूं नजर हो कह सकता है? अलीशा जरा पढ़ के बहाओ जी, थे ही मसला चल रहा। और अपने खादम से कहा जरा ऊपर जाकर समुंदर की तरफ तो नजर कर। कहता है जरा ऊपर जाकर समुंदर की तरफ तो नजर कर। सो उसने ऊपर जाकर नजर की और उसने ऊपर जाकर नजर की और कहा वहां कुछ भी नहीं है। हेलो रुकियो जी, नबी कहता है कि मैं बारिश की आवाज बरसने से पहले बारिश की आवाज सुन रहा हूं। वो कहता है जहां चेक कर कोई बदल आया है, होएगा से बदल। अलीशा जाता है, कहता है उस्ताद जी दूर दूर तक कोई बदल नजर। वो कहता है यार मैं वेखे, मैंने रोया में देखा है बादल, मैंने अपने रूहानी कानों से बारिश के बरसने से पहले बारिश की आवाज सुनी है। कहता सर जी मैं तुहाडे नाल झूठ बोलना है, दुआ छड्डो ते आप ही आके वेख लो। कहता नहीं एडा कच्चा ते मैं भी नहीं कि मैं हुण दुआ छड्ड के, ये तो बेईमानी हो जाएगी ना, मेरा ईमान डावाडोल होगा। हो बारिश होगी, बादल होगा। कहता फिर जा, फिर गया। ठहरो जी, ये विच ही 6 फेरे ने, वहां कुछ नहीं है। ये किन्ने फेरे ने? दूसरा फेरे में जा, फिर गया है वो नबी अलीशा शागिर्द गया है और नबी कहता है हाँ जी आया कुछ नजर। और कभी कभी तो शागिर्द इतने मुखालिफ हो जाते हैं, वो बेचारा नबी भी थोड़ा जा ढिला पै जाता है, कहता होरे मैं ही गलत हाँ। मगर एलिया कहता नहीं, मैं पीछे कौम बनी इस्राइल को बहाल करके आया हूं, मैं हैकल के दरवाजे बहाल करके आया हूं, खोल कर आया हूं, तौरात को बहाल करके आया हूं, 400 नबी कत्ल करके आया हूं, मेरी कुर्बानी पर आग नाज़िल हुई थी, ऐसे भी होएगी। उधर क्या बरसी आग, इधर क्या बरसेगा बारिश। कहता जा यार वो जा यार ना मैनू तंग कर, जा वेख। कहता सजी मैं थानू सही कह रहा जे, मैं तीजा चक्कर भी ला लिया जे, मैं चौथा भी ला लिया जे। कहता जा फिर 5वीं बारी भी जा, 5वीं बार भी हो गया है पर कोई बदल। कहता उतों अलीशा है भी बिल्कुल की सी, गंजा सी। कहना सा जी तुसी मेरी टेंट से पसीना पैदा कर देता है, मेरी टेंट गिली हो गई है, धुप दियां छुआवां नाल मेरी टेंट गरम हो गई है। कहना ना कर यार, टेंट ते तेरी गरम हो रही। कहना सर जी गिली होनी चाहिए बारिश नाल, ये पसीने से गीली हो गई है। आपको पता है अलीशा बिल्कुल ही गंजा सी। साढ़े तो हले भी वाल गिनो तो तुहाडे को गिने नहीं जाएंगे, इन्ने वाल ने साढ़े को। मगर बाइबल में लिखा अलीशा के सर पर एक भी बाल नहीं था। और एक जगह तो अलीशा जा रहा था, बच्चों ने छेड़ दिया, पूरे शहर के बच्चे इकट्ठे हो गए, कहते ओ गंजे, हो गंजे, हो गंजे। अरे खुदा का नबी था, नबी को गुस्सा आ गया। उसने मुड़कर देखा, खुदा की लानत तुम पर हो। 2 रीछनियां निकली, कितने बच्चे फाड़े? 42 बच्चे फाड़ दिए। ते जेड़े रूहानी गंजे ने ना, इन्हों ना छेड़ियो हैं। तो मैं ये नहीं कहना कि जिस्मानिया नहीं, किसी को भी नहीं छेड़ना। किसी का रंग काला है, उन्होंने काला नहीं कहना, जेड़ा गंजा उन्होंने
गंजा नहीं कहना। लिहाजा वो कहता है साथ जी धूप है धूप, कहता है नहीं बारिश की आवाज है, कहता है छठी बार भी जा, 6वीं बारी गया तो फिर भी की जवाब दे रहे कुछ भी नहीं। आगे पढ़ो जी 7वीं बारी को जो है उसने कहा फिर 7 बार जा, 7 बार जा, और 7वीं मर्तबा उसने कहा देखा और एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर, छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर, आदमी के हाथ। कहता है सर जी उस्ताद जी खुदा के नबी खुशखबरी मगर बड़ी छोटी सी। कहते हैं लजा यार 7वीं बारी गए हैं खुशखबरी ले आंदी है वो भी छोटी जी। कहते सर जी हूँ मैं की करा, मैं बदल बड़ा ना, बादल तो कौन बनाता है, तूफान कौन बनाता है, बारिश का समा कौन बनाता है। कहते हैं सर जी खुशखबरी है जो आड़े से। कहते केड़ी, कहते छोटी जी है, आदमी के हाथ के बराबर एक बादल मैंने देखा है समुंदर से उठ रहा है। कहता है अरे चलिया वो मेरे शागिर्दा, वो आदमी का हाथ नहीं है, वो खुदा का हाथ है। तालियां हालेलुया। अच्छा within 1 second, within some seconds ये बादल छोटा सा पूरे 12 कबीलों पर छा गया और 12 कबीलों से बाहर की सरहदों सारपत के इलाका में भी बादल छा गया। ते हो सकता उथे भी ये सारपत की बेवा को आखिरी सलाम कराया हो। अच्छा भैन मेरीए बाजी जी 1.5 साल तुसी मैनू अपने मटके का आटा खवाया घाटे से तो नहीं रहे। क्या जी नबी ना शर्मिंदा कर, तुझे दिया हुआ आटा मेरे सारे कुनबे का जीने का सबब बना। तालियां हालेलुया। मेरे सारे कुनबे के जीने का सबब बना, शर्मिंदा ना कर। कहता ले मैं आज जा रहा हूं। जिस दिन बारिश शुरू हो गई नया अनाज आ गया, तेरे मटके से मौजूजा खत्म खत्म, तेरे मटके का मौजूजा खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं जा रहा हूं अपने घुटनों के बीच में सर देकर क्या करूंगा, और दुआ करने से पहले क्या करूंगा, नबूवत करूंगा। जरा फिर ये बादल थोड़े से सेकंड्स में कहां कहां छाया है, जरा वो पढ़ दीजिए। तब उसने कहा कि जा और अखीब से कह हाँ जी कि अपना राह तैयार करके नीचे उतर जा, हाँ जी, ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। कहता बारिश तुझे रोकना, हले भी वो बादशाह कहता हूँ उड़ना जा, बादशाह भाग जा। कहता यार एलिया एलिया ए धुप चढ़ी है, बदल कोई नहीं नजर आ रहा है। कहता मेरे शागिर्द ने देखा है समुंदर पर आदमी के हाथ के बराबर एक बादल का छोटा सा टुकड़ा दिखाई दिया है। कहता तो वो इतने सारे बादल से उन्हें बढ़ दिया मैं राम ना जाऊंगा, मैं नसदा क्यों जावा है, मेरी चैरियट के पहिए टूट जाएंगे जितनी तेजी से तू कह रहा है। बीच में स्पीड ब्रेकर, और उन जमानों में तो सड़कें भी कौन सी होती थी, ईंटों वाली। सबसे पहले सड़क कौन सी बनी दुनिया में, ईंट वाली। असी अपने पिंड जाने होने सा तो ईंटा वालियां सड़कां, वो टांगे से बह जो है वो मैं कहा यार ये पिंड की जी सड़क है, वो टांगा इंज जिमें लगता जी वाइब्रेशन तो नहीं लगा जी। आगे पढ़ दीजिए। और तो कहता है इतनी जल्दी क्या है, छोटा सा बाल, कहता है छोटा नहीं है, ये खुदा के हाथ के बराबर का है और एकदम से तुझ पर छा जाएगा। जी आगे। और थोड़ी ही देर में आसमान घटा और आंधी, थोड़ी ही देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया। लो जी, चिट्टे भी बदल आ गए, काले भी आ गए, ते लाल भी आ गए, ते नबूवत की हो गई, पूरी हो गई। अरे खुदा की नबूवतों को पूरा होना होता है, क्योंकि नबी कहता है बारिश बरसने से पहले बारिश की आवाज। आमीन। गॉड ब्लेस यू।